Good morning, students. My name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about financial statements of a partnership firm. Partnership firm is also one of the important form of business organization. साझेदारी व्यवसाय भी व्यावसायिक संगठन का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है. In case of partnership, there are two or more than two partners who work together to earn profit and to earn their living. And for this purpose, they have a partnership deed, and at the end of the year, they prepare final accounts to calculate operational result and to disclose financial position of their business. Profit of a partnership firm or loss of a partnership firm is distributed among the partners according to the provisions of their partnership deed. And if they have no partnership deed, if they have not prepared partnership deed at the time of commencement of their business, then the provisions of Partnership Act 1932 will be applicable for the distribution of profit or loss of the firm between or among the partners. आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट बनाना सीखा, और वो एक इंडिविजुअल एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड फाइनल अकाउंट थे जिसमें कैपिटल एक ही व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था वो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया और वो कैपिटल आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में दिखाई थी. लेकिन अब यहाँ 2, 3, 5, 7, 10 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर तक एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं. तो ऐसी स्थिति में हम जब किसी फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो पार्टनर बैलेंस शीट में सभी पार्टनर्स से रिलेटेड जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर होते हैं उन सब की डिटेल हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते. बैलेंस शीट इज ए बर्ड आई व्यू. बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स परफॉर्मेंस एट ए ग्लांस. इट शुड बी इन ऑन one page only, irrespective of the total amount invested, irrespective of the scale and size of the functioning, irrespective of the number of partners in a firm. फाइनल अकाउंट्स में अभी तक आपने जो सीखा है उसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग, देन ट्रेडिंग अकाउंट भी आपने बनाया था लास्ट ईयर और 11th कॉमर्स के स्टूडेंट इसे बनाना जानते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आप सभी लोग ऑलरेडी बना चुके हैं. ये आप सभी लोग जानते हैं. Those who are in 12th standard, they have already prepared these financial statement in the 11th standard. You know, manufacturing account is prepared by all the manufacturing concern, by the industrial units. If you are manufacturer, you have to produce goods with the help of raw material, machinery, money, method and manpower. These are the 5 M's of industry. And after manufacturing the goods, the industrialists sell the goods to the wholesaler or to the direct retailer or to the consumer.
according to their market strategy, their business strategy. So manufacturing account is prepared to calculate total cost of production and per unit cost of production. If the total cost of production is divided by the total number of unit produced, you will get per unit cost. So the main object of preparation of manufacturing account is to calculate total cost and per unit cost of production, and it is prepared by manufacturing concern. इसे अपन प्रोडक्शन अकाउंट भी बोलते हैं, उत्पादन खाता भी बोलते हैं, और ये उन्हीं व्यवसाय द्वारा बनाया जाता है जो कि मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रखी है और वो उद्योगी कहलाते हैं, उद्योगपति कहलाते हैं। ये आपने पढ़ा है, हम ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद जो फिनिश गुड्स होता है उसको अपन ने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया था, क्योंकि ट्रेडिंग मीन्स से, और वो ट्रेडिंग हमेशा फिनिश गुड्स का होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज की जगह टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाएगा जो आपने यूनिट खुद प्रोड्यूस करी, और फिर क्रेडिट में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है, और उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है कुछ तो ऐड हो जाते हैं ट्रेडिंग में, और उसके बाद में डिफरेंस की राशि से जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला था, राइट। और फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है उसको हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लाभ हानि खाता, जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा व्यवसाय का लाभ अथवा हानि अंतिम परिणाम निकालने के उद्देश्य से बनाया जाता है। और जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया उसको हमने बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया था, और जो नेट लॉस आता है तो उसको हमने घटा दिया था। अब ये जो फाइनल अकाउंट आपने बनाए थे ये तो बने गए। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो वो ये तो बनाएंगे। अब इसके बाद में और क्या एक्स्ट्रा बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेनली, और जो मेन पार्ट है वो होगा हमारा जो P&L अकाउंट बनाया ना, तो उसके बाद में हम बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये तीन अकाउंट तो ऐसे कैसे रहेंगे, राइट। फोर्थ नंबर पे फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाएंगे। The main object of preparation of profit and loss appropriation account is to distribute the profit among the partners as per their partnership deeds. And partners capital account is prepared with a view to record all mutual transactions between firm and partner, so as to calculate the closing balance of their capital, which is to be transferred to the balance sheet of the firm. And फिर 6 नंबर पे जो बनेगा वो है बैलेंस शीट। So these are the financial statement. Why they are called financial statement? Because financial statement are the summary of all the financial transactions which have taken place during the year in a particular business or in a partnership firm. They are called as final account. Why they are called final account? अंतिम खाते क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। और वर्ष के अंत में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हमें वर्ष के अंत में व्यवसाय का परिणाम और आर्थिक स्थिति ज्ञात करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वही हमें फ्यूचर के लिए प्लान, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। बिकॉज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, बट देयर मे बी लॉस एंड यू वांट टू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस। तो हर व्यवसायी अपने व्यवसाय का परिणाम जानना चाहता है, और उसका परिणाम अगर अच्छा रहा, लाभ हुआ, तो उसे और अधिक प्रेरणा मिलती है और अधिक अच्छा काम करने की, कस्टमर्स को और अधिक अच्छी सेवाएं देने की, अपनी गुडविल को बढ़ाने की, अपने बिजनेस का एक्सपांड करने के लिए
उसको एक प्रेरणा मिलती है। और अगर किसी व्यवसाय में हानि हुई है तो उस हानि के कारणों की व्याख्या की जाती है, उनके हानि के कारणों का पता लगाया जाता है और उन हानि के उन कारणों को दूर करने का उपाय किया जाता है। क्योंकि बिजनेस इज ए लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न, वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड इट विल गो ऑन फॉर एवर बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द बिजनेसमैन। अगर एक व्यक्ति जीवन में कोई व्यवसाय करना तय कर लेता है तो जिंदगी भर 60, 65 साल, 70 साल जब तक वो काम कर सकता है, उसे वो व्यवसाय को चलाना पड़ेगा, तभी उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। बिकॉज बिजनेस इज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म तक चलाना है, प्रॉफिट कमाना है, अपनी सारी इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी करनी है, तो फिर आपको जो है सारे जो हमारे कस्टमर्स है, स्टेक होल्डर है, आउटसाइड पार्टी है, उनके साथ कमिटमेंट में भी हमें पक्का बना रहना पड़ेगा। हमने जो कमिटमेंट किए हैं रिसिप्ट पेमेंट के, वो हमें टाइमली अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप अपना गुडविल को मार्केट में मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की अब हम बात नहीं करेंगे। जब अपन को फाइनल अकाउंट एक पार्टनरशिप फर्म के बनाने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बनाना है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का जो बात है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड्स क्या है, कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट में उनको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? It is that part of financial statement of a partnership firm which is prepared with a view to distribute net profit or net loss of the firm at end of the year between or among the partners of the firm. इसे हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। यह एक साझेदारी फर्म में बनाए जाने वाले अंतिम खातों में एक महत्वपूर्ण खाता है, जिसका उद्देश्य वर्ष के अंत में साझेदारी फर्म को हुए लाभ अथवा हानि को साझेदारों के बीच हुए समझौते और संलेख के शर्तों के अनुसार उसका वितरण करना है, जिससे कि उनके व्यक्तिगत खातों में जो विभिन्न मदें हैं लाभ वितरण की, उन्हें हस्तांतरित किया जा सके। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा साझेदारी फर्म के अंतिम खातों में एक महत्वपूर्ण खाता है, जिसे लाभानी नियोजन खाता कहते हैं। अब इस लाभानी नियोजन खाते में कौन कौन सी मदें आएंगी, कौन कौन से आइटम्स दिखाए जाएंगे और उसका स्वरूप क्या होगा, ये मैं आपको ये अकाउंट बना के बताऊंगा। और हर एक मद का, हर एक आइटम का क्या जो है इंपॉर्टेंस है, क्या पार्टनर्स के साथ और फर्म के बीच में रिलेशन है, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता। तो ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, APPROPRIATION अकाउंट। और इसका ये दो साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, एंड headings to be fulfilled are particulars, amount, और अमाउंट के साथ आप रुपीज लिखेंगे
is the Indian currency, particulars, amount, rupees। तो आप देखिए, जब आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तब आपने एंट्री करी थी क्या? नेट प्रॉफिट होने पर हमने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिखा था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ एक सोल ट्रेडर ही था। वो जो सारा नेट प्रॉफिट था वो हमने किसी ऑनर के अकाउंट में, उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। एंट्री क्या थी? व्हाट इज द एंट्री? ट्रांसफर एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। द एंट्री वाज P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ अब जो हमारा P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला है वो सीधा कैपिटल में नहीं जाएगा, वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन के माध्यम से फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा पार्टनर्स के, क्योंकि यहाँ जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ एक ऑनर नहीं, दो से ज्यादा लोग ऑनर है। and the name of the partner may be XYZ, it may be ABCD। तो ये हम नाम, और क्वेश्चन में आपको जो एक्चुअल नाम दिए हुए हैं, that name is to be followed and is to be used in solving the problem regarding distribution of profit and for preparation of their balance sheet। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट जो P&L से निकलता है उसको पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये जो एक पार्टनरशिप फर्म का जो नेट प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट बनाकर हमने निकाला, वो कैसे निकाला वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ योर प्रीवियस क्लास एंड यू पीपल नो हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें इस वीडियो के माध्यम से एक साझेदारी फर्म का जो फाइनल अकाउंट का हमारा पहला अकाउंट है, जिसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, लाभांश नियोजन खाता कहते हैं, जिसका उद्देश्य नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को साझेदारों में उनके साझेदारी सल्ले के अनुसार बांटना है ताकि उनमें कोई विवाद नहीं हो। तो हमने ये लिख दिया बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में P&L अकाउंट के माध्यम से नेट लॉस निकलता है तो एंट्री क्या बनती है? फिर एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। हम यहां लिखेंगे नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट लॉस फॉर द ईयर, ये लिखा जाएगा। तो जनरली प्रॉफिट की सिचुएशन ही होगी, लेकिन कभी कभी लॉस की भी हो सकती है, तो हम यहां लिखेंगे टू P&L अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मान के कर रहा हूं कि फर्म में नेट प्रॉफिट है। आपको ये ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा, और नेट लॉस दिया हुआ फॉर द ईयर तो डेबिट में आएगा। अब हम बात करेंगे जनरल रिजर्व की। व्हाट इज जनरल रिजर्व? A reserve which is created out of profits to strengthen internal financial position and to meet out any kind of unknown future loss or expenses। सामान्य संचय किसी भी व्यवसाय के द्वारा बनाए जाने वाला एक ऐसा संचय है जिसका उद्देश्य एक फर्म में होने वाले भावी अज्ञात हानियों और व्ययों को अपलिखित करना है। यू नो, पार्टनरशिप बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एवरी बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एंड देयर इज ए रिस्क, चैलेंज एंड अनसर्टेनिटी इन द लाइफ ऑफ एवरी बिजनेस। जिस तरह से एक नेचुरल व्यक्ति के लाइफ में हमेशा अनिश्चितता होती है,
वैसे ही अनिश्चितता और चुनौतियां और हानि की संभावनाएं एक व्यवसाय के लिए भी होती हैं। Once you have established a business, you have to carry on for long time, irrespective of the changing conditions, because the market condition may be sometimes favorable and sometimes unfavorable. So we have to continue in all situations, and that is possible when the business is internally financially sound. तो वो तभी संभव है जब हम अच्छे दिनों में, जब हम हमारे बिजनेस में अधिक अच्छा लाभ कमा रहे हैं, तो पूरा लाभ का अमाउंट खर्च नहीं करें। एक सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम जिस तरह से सेविंग करते हैं इंडिविजुअल लोग, वैसे ही एक बिजनेस को भी अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करके संचय में हस्तांतरित कर देना चाहिए। तो उसकी हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो मैंने सबसे पहले जनरल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व। तो जितना प्रॉफिट करना है आपको एग्जाम में, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को आप ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद हम ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक पार्टनर्स को फर्म की ओर से सैलरी, कमीशन, फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट उससे लिया जा सकता है। लेकिन जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी देगी ना, तो इट्स ए म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर। ओरिजिनली इट इज ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंड लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इट इज एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो लाभ है इसका निस्तारण करना है, इसका वितरण करना है। तो इसलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो साझेदार को दिया जाने वाला कोई भी सैलरी, कमीशन, फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वो दो मेथड है, वो फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर एक फर्म ने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रखा है तो जितने भी पार्टनर्स को हम पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री होगी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कब आएगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। और इट मे बी ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब अगर किसी फर्म में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो किया गया तब हम लिखेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट लिखना है या कैपिटल अकाउंट लिखना है डेबिट साइड में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड लिखा हुआ है। अगर लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल आर मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड तब तो आपको लिखना है टू करंट अकाउंट और उसके अंडर में वो सारे आइटम आएंगे जो हम पार्टनर को देंगे। और अगर लिखा है कि कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उसको फ्लक्चुएटिंग मान सकते हैं। और लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग से किया जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में कैपिटल का एक अकाउंट बनेगा और आप यहाँ को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब इसके अंदर जो आप सैलरी पार्टनर को देते हैं तो फर्म की बुक में दो एंट्री होती है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और ये जो सैलरी आपने दी कहां से लोगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन से। तो फिर दूसरी एंट्री होती है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जो दो एंट्री नहीं करके एक एंट्री के माध्यम से, यानी कि व्हाटएवर इज पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर इट विल बी रिकॉर्डेड बाय पासिंग द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो एक बार लिखने के बाद फिर आप इसके अंदर लिख दोगे। अगर मान लो सैलरी दी गई है पार्टनर्स को तो किसको दी गई है उसका नाम आ जाएगा सैलरी टू और वो उसका नाम लिख के यहाँ लिख देंगे। फिर जो कमीशन है वो भी किसी एक पार्टनर को दिया जा सकता है तो कमीशन टू जिसको दिया है उसका नाम आ जाएगा। फिर अगर किसी को कोई फीस दी गई है पार्टनर को तो फीस टू वो यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। अगर मान लो दो पार्टनर ए और बी को सैलरी दी है तो सैलरी टू ए और बी आप अंदर लिख के दोनों के टोटल को फिर आउटर कॉलम में बाहर लिख दो, राइट। तो सैलरी, कमीशन, फीस और किसी पार्टनर को
और वो ए बी सी तीन पार्टनर है मान लीजिए, तो उन तीनों को दिया जाएगा हमेशा। बाकी सारे आइटम किसी एक पार्टनर को दिए जा सकते हैं, सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस may be given to one or two specific partner according to partnership deed, but interest on capital if allowed it will be payable to all partners। तो मान लीजिए पार्टनर है ABC, तो मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ABC। अब इसी तरह से अगर एक फर्म पार्टनर्स को ड्राइंग करना अलाउ करती है, तो ड्राइंग तो हो चुका है, वो उनका कैपिटल में रिकॉर्ड होगा, लेकिन द फर्म हैज राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स एंड इट विल बी इनकम फॉर दी फर्म। और उसको भी चार्ज करेंगे तो हम पार्टनर से लेंगे, तो इसके लिए हम इधर लिख सकते हैं वही, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लिख देंगे। और ये कब लिखना है, जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तब हम यहां लिख सकते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और ये फ्लक्चुएटिंग मेथड FLUCTUATING फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो फर्म की इनकम होती है, पार्टनर से लिया जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और वो जितने भी पार्टनर है, मानो ए बी सी तीन पार्टनर है, तो वो तीनों से लिया गया वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से एक साझेदारी फर्म अपने साझेदारों के द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल करती है, तो उसकी इनकम होगी वो नेट प्रॉफिट के अलावा होती है, इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और एक साझेदारी फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस के नाम से भुगतान करती है, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म का एक्सपेंसेज हो गया, तो ये फर्म के अकाउंट में डेबिट में आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि ये साझेदारी फर्म की पुस्तकों में बनाया जाता है, किसी साझेदार के व्यक्तिगत बुक्स में नहीं बनाया जा रहा है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड इसलिए पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर का है, वो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो डेबिट में जो फर्म द्वारा पार्टनर को दिए जाने वाला आइटम है, जो फर्म के लिए व्यय होते हैं, इसलिए सारे व्ययों को डेबिट कर देना, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से वसूल करती है उसके द्वारा किए गए आहरणों पर, और वो उसी पार्टनर से लिया जाएगा जो जिस पार्टनर ने आहरण किया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, वो हम अलग अलग एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे, क्योंकि द ड्राइंग बाय द पार्टनर मे बी ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट एंड इट मे बी स्ट्रेटेजिक एंड ए फिक्स्ड टर्म अमाउंट ड्रॉन आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट एंड फॉर्मूला है, डिटेल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, तो दैट वी विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो। ठीक है, ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इसमें बात कर रहे हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट होगा। और P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट बनाने के बाद बनता है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य फर्म के लाभ का, हानि का साझेदारों के बीच वितरण करना है। और इसके बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज टाइप आइटम्स इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इफ क्रेडिट साइड is higher than debit side total of all items, then it will result out net profit, which is to be divided among the partner according to the partnership deed. अगर साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण का रेशियो है, मान लो ABC का 5:3:2, तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो 5:3:2 में बांटा जाएगा। और अगर साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच लाभ और हानि को वितरण करने का कोई समझौता नहीं बना हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? It will be distributed equally by following the provision applicable in the absence of partnership deed. तो फिर अब नेक्स्ट आइटम हमारा क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लिखा हुआ है, किसी एक एंट्री के अंदर ही सारे आइटम आ गए, और फिर हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है ना, वो शेयर ऑफ ए, बी और
डेबिट साइड टोटल हमारी ज़्यादा है, इट विल रिजल्ट आउट लॉस टू द फर्म, लॉस टू द पार्टनर्स. So that loss will also be distributed among the partners according to their given ratio or equally in the absence of ratio. तो वो हम इधर लिखेंगे loss for the year, loss to the partners, और loss में पार्टनर के नाम लिख देंगे हम A, B, C, उनका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इसे बांट के फिर बाहर लिख देंगे एंड ये टोटल आप डबल लाइन कर दोगे, नीचे ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल रेड लाइन कर सकते हैं. पर्टिकुलर अमाउंट ये रेड पेन से लिखना है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी रेड पेन से लिखा जाना चाहिए और ब्लैक पेन से लिख सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन. एंड दीज आर द आइटम टू बी सोन P&L एप्रोप्रिएशन. तो पहला क्या है, ट्रांसफर टू जनरल और लॉस को डेबिट में लिखा जाएगा. ये सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई एक आपको दे रखा होगा, वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस P&L अकाउंट बनाकर निकाल के दिया गया होगा, उसको इधर आपको शिफ्ट कर ट्रांसफर करना है. और उसके बाद में जो प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप डीड में जो बात दिया गया है क्वेश्चन में उसको फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पार्टनर को दिए जाने वाले सारे आइटम्स है वो डेबिट में आएंगे और उसे लिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही होता है वो क्रेडिट में आ जाएगा. सो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, जो कि एक साझेदारी फर्म में वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जो हुई है उसे साझेदारों के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सी माई नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट एंड मेथड ऑफ preparation of partners capital. Thank you very much. God bless you.